Elvisha current energies. Okay, so let us check out their current energies. Okay, so this is Seven of Swords. Something fishy is going on, and they are like kind of hiding something from each other, and sneakily they are doing something, and for their own selfish need, I would say. They may be into some dubious means also, okay, or they may be hiding feelings from each other, okay, कुछ भी हो सकता है. Okay, yeah. So they're missing something. What is that they are missing? I don't know. But they may be missing that chemistry between them. They may be missing that, or maybe someone is ill. Maybe. वो तुमने ऑलरेडी बताया इसलिए ये ऐसा वाला कार्ड आया है. तो ट्राइंग टू हार्ड टू कम आउट ऑफ दिस इलनेस, ये भी हो सकता है. और मे नॉट बी टेकिंग गुड केयर ऑफ देमसेल्स, ये भी हो सकता है, इसलिए ये वाला कार्ड आया. Okay, or maybe hiding there is something really serious. I see, but God forbid this should not happen, but they should take care of their health seriously. ये बोलने की कोशिश करा है. There's something really uh, to be concerned about, that should not take their health lightly. Okay, health को seriously लो और उसको एड्रेस करो अगर कुछ गड़बड़ है या प्रॉब्लम है तो. ये हो सकता है. आई विश बोथ ऑफ देम गुड हेल्थ, बट देन कार्ड्स ऐसे ही बोल रहे हैं. Lovers. Okay, they are enjoying. Yes, they have options. They are enjoying also. They feel that they are like, I would not say made for each other or soulmate or twin flame or something, but then they are enjoying each other's company. And yeah, okay, अच्छा enjoy कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. Good company. Okay, okay, everything is very transparent between them. Okay, no hidden energies, no hidden agenda. Okay, so very legally, lawfully they are doing things. Okay, okay, but at the same time they are very mentally agile, and waiting for certain things, and they know that they need to give their best. So एक छोटे छोटे चीज़ जो होते ना, स्मॉल लिटिल डिटेल्स, उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए ही सारी चीज़ें कर रहे हैं वो. एक लास्ट कार्ड ले लेती हूँ. ओके, दे आर थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग अबंडेंस फॉर देमसेल्स, मेकिंग देयर रिस्पेक्टिव फैमिलीज प्राउड ऑफ देमसेल्स, एट द सेम टाइम हैप्पी. ओके, अब ये देखते हैं हम इनकी इंडिविजुअल एनर्जीज क्या हैं. तो व्हाट आर एल्विशस करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स मनीषा. जनरल फीलिंग और करंट फीलिंग्स दोनों ले लेते हैं. जनरली कैसा फील करते हैं, हाउ डज ही फील फॉर मनीषा, एंड what are his feelings towards Manisha currently, both. How does he feel? Okay, she feels that this girl has really done a lot for herself, and yes, he respects her for that, and he also finds her attractive enough, and he feels that he's a complete person, and a self-made person also, very hardworking and very abundant now, and maybe he's finding her attractive also, very loving and caring person. This is what he feels her to be. So Empress, the other meaning can be he may be interested in her, I don't know. Then the next card it is not the next card. Currently, what are his energies, what are his feelings towards Manisha. ओके, सो इट्स लाइक काम ख़त्म होने के बाद वो अपने रास्ते जाएगी, मैं अपने रास्ते जाऊंगा. ओके, तो इट्स लाइक ओके, और ही मे बी थिंकिंग ही इज़ प्रोवाइडिंग एवरीथिंग टू हर, बट शी डजंट सीम टू बी दैट इंटरेस्टेड. ऐसा भी हो सकता है बिकॉज शी इज़ गॉट एवरीथिंग. तो शी इज़ फोकस्ड ऑन हर वर्क, or she's got some other commitment or something. Commitment doesn't mean that she is interested in some other person.
It means that she's got lot of things on her plate and she has to cater to everything. ओके, तो इसलिए जा रही है वो. ओके, उनका वहाँ फोकस है, इसलिए सैड फील कर रहे हैं वो. बट वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे इनकी खातिरदारी करने के लिए या फिर इनको चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए. ये है इनकी फीलिंग्स. अब हम देखते हैं मनीषा की जनरल फीलिंग क्या है एल्विश के लिए. ओके, दिस गर्ल इज़ रियली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स this guy. She finds him very good looking, attractive and very confident. तो या है उनका अट्रैक्शन उनकी तरफ. अभी क्या है फील करती है मतलब, ये इनकी जनरल ओपिनियन है उनके बारे में कि बड़ा अच्छा बंदा है, गुड लुकिंग है, उसकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है मुझे, ऐसा सोचती हैं वो. और कॉन्फिडेंट है, क्वीन की एनर्जी में है, तो थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड है, कम बोलता है, इंट्रोवर्ट है, वैसे अपने फीलिंग्स को लेके, इमोशंस को लेके थोड़ा वैसा है. हालांकि ये क्वीन बड़ी वो होती है, लेकिन इसमें इनका फेमिनाइन फैक्टर ज़्यादा दिख रहा है उनको. ओके, सबके इसमें मेल एंड फीमेल दोनों एनर्जीज़ रहती है. आप मेल है उसके बाद भी आपके पास फीमेल एनर्जीज़ भी रहेंगी और मेल भी. आप फीमेल है तो आपके पास मेल एनर्जीज़ फीमेल एनर्जीज़ दोनों रहती है. तो कौन सी वाली एनर्जी आपकी ज़्यादा डोमिनेंट है? आपकी अगर फीमेल एनर्जी डोमिनेंट है, इसका मतलब आप बहुत इमोशनल आदमी हो, सेंटिमेंटल हो. और अगर आपकी मेल एनर्जी ज़्यादा डोमिनेंट है तो आप बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, सेंटिमेंट्स वगैरह थोड़ा पीछे रखते हो. नेक्स्ट, इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं एल्विश को लेके. तो ये भी कुछ ज़्यादा नहीं सोचती है. इसको शायद अपने काम और अपने आप को मैं कैसे और बड़ी से बड़ी क्वीन बना सकूं, ये ध्यान है इनका भी. और शायद ये भी बीमार है तो उनकी तरफ देख भी रही है, ये भी हो सकता है. ओके, तो कभी ना कभी इनको दिल में आता है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी इनके साथ वक्त बिताने का, क्योंकि ये कार्ड आया था. तो अपॉर्चुनिटी देखती हैं इनके साथ, कभी कुछ हो सकता है या नहीं. तो ऐसी इनकी फीलिंग्स है उनके लिए. Okay, so with this, I end my reading for you for today. I'll catch you again with the fresh topic in a new video. Until then, guys, please do take very good care of yourselves. Do not forget to subscribe to my channel if you haven't yet. Okay, turn on the notification bell also. And until I meet you, bye bye.